پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. مشکل کب رہتی ہے، ایک ہے کام اور ایک منزل. ایک ہے کام اور ایک منزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک ہے قوم اور ایک ہے منزل. آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز کی یوم پاکستان کی اسپیشل ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا میزبان توقیر رمضان. 23 مارچ تجدید عہد کا دن، پاکستانی تاریخ کا روشن باب. اس دن پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد پیش کی گئی اور جب تمام قوم نے مل کر کوشش کی تو 7 سال کے بعد اس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور پاکستان ایک ملک کی صورت میں، ایک آزاد مملکت کی صورت میں ہمیں حاصل ہوا. اسی دن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کس مقاصد کے تحت قرارداد پاکستان پیش کی گئی 23 مارچ پورے ملک میں منایا جاتا ہے، اور اس دن ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں اور دفاتر میں تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. لیکن رواں برس کورونا وبا کے پیش نظر، کورونا وائرس کی 3rd ویو کی تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر اس برس تقاریب کو بہت ہی محدود رکھا گیا اور موسمی حالات کے پیش نظر تاریخی اہمیت کی حامل پریڈ کو بھی 2 روز کے لیے ملتوی کیا گیا. پاکستان حاصل ہم نے کن مقاصد کے تحت کیا تھا اور ہجوم سے قوم بننے کا سفر ہمیں کیسے طے کرنا پڑے گا؟ آج کی ٹرانسمیشن میں اس پر ڈیپلی بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مسعود شریف صاحب، پرنسپل گورنمنٹ فریدیا پوسٹ گریجویٹ کالج. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. ان کے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی شاد، پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کمیر ٹاؤن ساہیوال. سر ویلکم ٹو دی پروگرام. ان کے ساتھ موجود ہوں گے عقیل شہباز، ایڈوکیٹ صاحب، ایجوکیشنلسٹ ہیں اور ایک تعلیمی ادارے کے پرنسپل بھی ہیں. عقیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر مسعود صاحب آپ سے آغاز کروں گا. پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جس جذبے کے تحت ہم نے قرارداد پیش کی 23 مارچ کو، کیا اسی جذبے کے تحت یہ اس ملک کو سنوارنے کی بھی ضرورت سمجھتے ہیں؟ جی بات دہرائیے گا ذرا، مجھے سمجھ نہیں لگی. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جس جذبے کے تحت پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، اس جذبے کے تحت یہ اس ملک کو سنوارنے کی ضرورت ہے، مگر ایسا نہیں کیا جا رہا. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک جذبہ تھا، کوئی بھی تحریک یا ملک یا ادارہ یا کوئی بھی چیز، ایون دیٹ حتیٰ کہ ہم گھر بھی بناتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مابعد طبیعتی طور پر ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک سوچ کارفرما ہوتی ہے. تو مسلمانان برصغیر کے لیے کوئی روٹی، کپڑا، مکان یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ تو وہاں پر بھی مل رہا تھا، جو بھی سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا. اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا جو قیام پاکستان کا ایک بنیادی محرک تھا اور پہلی اینٹ تھی، اور وہ تھا قیام پاکستان کا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر آپ اس کو تاریخی طور پر دیکھیں تو برصغیر میں جو قیام پاکستان سے چند سال پہلے الیکشن ہوئے اور اس میں مسلم لیگ بالکل ہی ہار گئی تھی، اور جب اس نعرے کو برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ متعارف کرائے گا کہ قیام پاکستان کا مقصد یہ ہے، تو آپ دیکھ لیں وہی مسلم لیگ جو چند سال پہلے الیکشن میں بری طرح ہاری تھی، صرف چند سال کے فرق سے کیا ایسا کوئی اس میں انقلاب یا محرک تھا کہ وہی مسلم لیگ مسلمانوں کی مقبول ترین جماعت بن گئی اور اس نے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی. وجہ اس کے ایک نظریے کا یا عقیدے کا یا مقصد کا اظہار تھا. اس کا مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک زمام اقتدار یا ہمارا نصاب تعلیم یا نظام تعلیم ان خطوط پر استوار ہی نہیں ہوا جو ایک ایسی نسل مہیا کریں جو کلمہ طیبہ کو یا قیام پاکستان کا جو بنیادی نعرہ تھا اس مقصد کی طرف وہ گامزن کر سکے. اس کی وجہ سے ایک کشمکش جاری ہے، ایک طبقاتی کشمکش نے جنم لیا اور دوسرے کئی مسائل نے جنم لیا، جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ ڈالر جو قیام پاکستان کے وقت ہماری کرنسی کے برابر تھا، آج اس میں اور ہماری کرنسی میں کتنا فرق آ چکا ہے. یہ صرف معاشی نقطہ نظر سے مثال عرض کر رہا ہوں، باقی اور کئی نقطہ نظر سے مثالیں بھی اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صرف معاشی نقطہ نظر سے دیکھ لیں
کہ جس مقصد کے تحت حاصل کیا تھا، جب اس مقصد کے ہم ساتھ تھے نظریاتی طور پر یا عمومی طور پر، لیکن جتنا دور ہوتے گئے آپ ڈالر کی اڑان کا فرق دیکھ لیں، جو وقت اس وقت برابر تھا آج کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس پہ کئی گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے محرکات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ظاہری سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتی ہے۔ باقی اس میں چونکہ اہل علم موجود ہیں وہ بھی اپنی آراء دیں گے، لہٰذا یہ ہے کہ آپ ان کی طرف بھی سن لیں کہ ان کی رائے کیا ہے اس مسئلے میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر احمد علی شاہ صاحب۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے حصول کے بعد قائد اعظم جیسی عظیم لیڈران چلے گئے، کیا قیادت کا فقدان وجہ بنا یا کچھ اور مسائل سامنے آئے کہ پاکستان ڈی ٹریک ہو گیا، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ ڈاکٹر احمد علی شاہ صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ کمیونیکیشن کا شاید گیپ ہے، ڈاکٹر احمد علی شاہ صاحب اپنا نظریہ ہمارے سامنے رکھ سکے۔ عقیل شہباز صاحب آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، سر یہ بتائیے گا کیا پاکستان بنانے کا مقصد ہم سمجھ نہیں سکے؟ اگر سمجھ سکیں تو اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کن اقدامات کو اٹھانے کی اشد ضرورت ہے فی الفور؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مسعود شریف صاحب کو، رحمت علی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پیر توقیر رمضان کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے شہر فرید کے بہت سے مسائل کو سامنے لائے، اور جو بات ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانی چاہیے ہمیں، اس پر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا جو پروگرام ہے آپ کا وہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ جو جس مقصد کے تحت پاکستان کا حصول کے لیے جد و جہد کی گئی، اور 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اس کے پیچھے جو محرک تھا، بیسیکلی جو پاکستان کے حصول کا محرک تھا وہ کیا تھا، تو اس بات کو ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا، تحقیق بھی اس پہ ہوئی کہ جو پاکستان کے حصول کا بیسک مقصد تھا وہ جیسے مسعود شریف صاحب نے فرمایا، اس کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تھی، لیکن اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہوگا کیا۔ اگر ریاست ہم لیں گے جس کے تحت اتنے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور وہاں پہ ایک نظریہ دیا گیا، نظریہ کیا تھا؟ نظریہ تھا ایک فلاحی اسلامی ریاست جس کے حصول کے لیے جد و جہد کیا، لوگوں نے نیت کی، ارادہ کیا 23 مارچ کو، اور ان کی نیت میں اتنا اخلاص تھا، ان کا ارادہ اتنا پختہ تھا کہ صرف 7 سال کے عرصے میں وہ اپنی اس منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو اسلامی رفاہی ریاست ہے ہماری، وہ ہے کیا؟ بیسیکلی اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی رفاہی جو ریاست ہے، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشل جسٹس، یعنی جو انصاف ہے وہ ہر بندے کی دہلیز پر پہنچے، بر وقت اسے ملے۔ دوسری چیز جس کی اسی آئین میں بھی ہمارا اس قرارداد پاکستان کا جو دیباچہ ہے وہ ہمارے آئین میں اسے ریٹن کیا گیا ہے، جو ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہے، یعنی تعلیم کا حصول، ہر پاکستان کا یہ حق ہوگا کہ وہ اس کو تعلیم مہیا کی جائے۔ پھر صحت کا حصول، ہر پاکستان میں بسنے والے شخص کا یہ حق ہوگا کہ اس کو صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تحفظ، یعنی ہر شخص کو، پاکستان میں رہنے والے کو، جو یہ ارادہ لے کے نکلے تھے کہ جب ہم پاکستان حاصل کر لیں گے تو اس نیت کے ساتھ نکلے تھے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم ایک ایسی مملکت ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں پہ سوشل جسٹس بھی ہوگا، جہاں پہ ہماری تعلیم کی کمیاں بھی پوری کی جائیں گی، جہاں ہمیں صحت کی سہولتیں بھی ملیں گی، اور ہماری جان کو بھی تحفظ ہوگا، ہمارے مال کو بھی تحفظ ہوگا۔ اور ایک ایسا پاکستان، ہمیں ایک ایسا ملک ملے گا جہاں پہ نہ کوئی کسی کی جان لے سکے گا، نہ کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ آور ہو سکے گا۔ یہ وہ مقصد تھا جو قیام پاکستان کا بیسیکلی باعث تھا، اور یہی وہ نظریہ تھا جس کے تحت لوگوں نے کوشش کی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور اس قدر قربانیاں دیں جو ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے بھی، کہ تاریخ کا جتنا بڑا قتل عام ہوا اور قربانیاں دے کر ہم نے یہ مملکت پاکستان حاصل کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟
मसला यही है कि जो क़यादत की आपने बात की, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद देखो ना कितनी आला क़यादत और कैसा आला नज़रिया था कि सिर्फ 7 साल के अरसा में उन्होंने जो बुनियाद थी इस रियासत के हसूल की वो उन्होंने हासिल कर ली, और उसके बाद आज 81 बरस हो चुकी हैं, ना हम सोशल जस्टिस का दावा कर सकते हैं, ना हमारे मुल्क में तालीम हर बच्चे को मिल रही है, ना सेहत की सहूलियात मुहैया होती हैं, और ना ही हम ये समझते हैं कि हम रात के वक्त दिन के वक्त किसी जगह पर भी अपने आप को महफूज तस्वर कर सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए गौर इस किस्म का होना चाहिए कि हम जब क़यादत को चूज़ करते हैं, जब हम इलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा निज़ाम है, सबसे बड़ी वजह तो कीर भाई मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा मौजूदा निज़ाम है ये सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक इस निज़ाम के तहत आप इलेक्शन करवा लें, आप फौजी हुकूमतों को देख लें, आप जिस भी ज़राए को देख लें, चेहरे बदलेंगे, लोग बदलेंगे, लेकिन इस मुल्क के, इस कौम के हालात नहीं बदलेंगे। जब तक हम इस निज़ाम को नहीं बदल देते, मेरी ज़ाती राय के नज़दीक उस वक़्त तक हमारी जो मंजिल थी, हमारा जो नज़रिया था, उस तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। हमें इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हम जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें, कि वो रिफॉर्म्स हों। हर बंदा जो इस काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो सलाहियत रखता हो, उस वो क़यादत जब तक आगे नहीं आएगी तब तक मेरा ख्याल है कि हम मज़ीद 100 साल स्ट्रगल करते रहेंगे, हम उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। जी तो भाई। ठीक है, डॉक्टर अहमद अली शाद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूंगा, कायदे आज़म जैसे अजीम लीडरान के चले जाने के बाद पाकिस्तान डी ट्रैक हो गया, अपने मकासद से हट गया। क्या क़यादत का फुकदान वजह बना, या कुछ उसके और मसाइल बने कि पाकिस्तान को हासिल करने के बाद हम तमाम तर बिल्कुल आज़ाद हो गए, उसके फलाह बहबूद के लिए कुछ इस तरह से इकदाम नहीं उठाए जा सके? साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम सब दोस्तों को यहाँ पे एक काज के लिए इकट्ठा किया। जी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इसमें अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से इसे नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इसमें लेकिन इसमें टैलेंट भी है, इसमें अच्छे अच्छे हुक्मरान भी आए, और इस पे बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है। दोस्तों ने भी अपनी अपनी राय दी, महसूस की है। इखलास, इत्तफाक और इत्तेहाद, अगर ये चीजें ये कौम को कौम बनाती हैं, ये एक यूनिटी की तरफ हमें लेके जाती हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अफसोस कि हम अपने मफाद के लिए, मैं समझता हूँ कि जितने भी हुकूमत गरीबों से, लोगों से ज्यादा अपने मफादात अजीज थे। सब की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने मफादात को मुकद्दम जाना, और इस तरह ये मुल्क और ये बाकी चीजें ये पसे पुश चली गई। यानी आप समझते हैं हमारे मोस्टली मसाइल की जो वजह है वो क़यादत का बहरान है। हमारे पास ऐसी क़यादत नहीं है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, मुल्क के साथ मुखलिस हो, इसके बासियों के साथ मुखलिस हो, इसके मसाइल को हल करने की मैं दिलचस्पी लेती हूँ। सब अपने मफादात के लिए काम करते हैं। डॉक्टर साहब सुन सकते हैं आप हमें? जी जी, आवाज आ रही? सर मेरे कहने का ये, मैं कह रहा था कि जनाब के कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मोस्टली मसाइल है उनकी वजह हमारे पास क़यादत का बहरान है। हमारे पास ऐसी क़यादत मौजूद नहीं है जो वतन के साथ मुखलिस हो, इसके बासियों के साथ मुखलिस हो, इसके मसाइल को हल करने के लिए दिलचस्पी लेती है और इसकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करे। क्या है जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते थे, लेके गए भी हैं,
لیکن اکثریت ایسی تھی جنہوں نے اپنے مفاد کو مقدم جانا ہے، جنہوں نے یہ دیکھ لیں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، یہ سینٹ کے جو صورتحال بنی یا باقی جو معاملات ہیں، اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہی لوگ اگر بالکل مخلص ہو جائیں اور غریب کی تکلیف کو تکلیف سمجھیں، غریب کی تکلیف کو تکلیف سمجھے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر احمد علی شاد صاحب کمیونیکیشن گیپس کے بعد اپنی بات کو مکمل نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے کہ دیگر جو دوست ہیں وہ بات کر چکے ہیں کہ حصول پاکستان کے جو مقصد ہے ہم ان سے بالکل پرے ہٹ چکے ہیں اور ان کو پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا نہیں کر پائے. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق پاکستان کی تشکیل نو کے لیے اس وقت کن اقدامات کو فی الفور اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فقیر بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی سلسلہ جو چلانا ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک بہت بنیادی ضرورت اس کے لیے فیول یا ایندھن ہوتا ہے. گاڑی بہت اچھی ہو، بہت مہنگی ہو، لیکن اس کے اندر فیول نہ ہو تو وہ بیکار ہوتی ہے. بھائی نے بات اچھی کی کہ یہ نظام ہی ایسا ہے، ڈاکٹر صاحب بات اچھی فرما رہے تھے، لیکن ایک بنیادی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس گندے نظام کو ہم افرادی قوت کہاں سے دے رہے ہیں؟ اور جو ایک اچھا نظام ہے جس میں ایک حاکم وقت یا عادل یا قاضی یا منصف جو ہے وہ کسی مظلوم کے آنے سے بے چین ہو جائے یا کسی مظلوم بیٹی کی آواز سنے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو یہاں نیندیں اڑ جائیں، وہ ایسے نیک اور خدا ترس حکمران کہاں سے پیدا ہوتے تھے؟ اور اگر وہ جہاں سے پیدا ہوتے تھے کیا وہ ادارے ہمارے پاس موجود ہیں؟ وہ نصاب ہمارے پاس موجود ہے؟ وہ نظام تعلیم ہمارے پاس موجود ہے جو ایسے خدا خوفی والے اور خدا ترس افراد پیدا کرتا تھا؟ علامہ اقبال کے جو نظریات ہیں وہ تو واضح ہیں. کس قدر انہوں نے تنقید کی ہے ان کے کلام، جو فارسی کلام ہے وہاں پر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو مغربی تہذیب ہوگی اور اس کے تعلیمی اداروں کا جو بڑا ہوگا یا اس نصاب کا پروردہ ہوگا، اس میں نہ غیرت ایمانی ہوگی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، نہ وہ قوم سے مخلص ہوگا. تو ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ایک بہت بڑی میجر سرجری کی ضرورت ہے نصاب تعلیم میں اور نظام تعلیم میں، کہ یہاں سے ایسے افراد پیدا ہو کر نکلیں جو غریبوں کے بھی ہمدرد ہوں اور انصاف کرنے والے ہوں اور انصاف کی خاطر بے چین ہونے والے ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب اندلس یا ہسپانیہ کا عیسائی حکمران جب کسی غیر مسلم بیٹی پہ بھی غلط نظر رکھتا تھا تو اس کا غیر مسلم باپ مسلمانوں کے پاس آتا تھا کہ میری بیٹی کی عزت کو بچائیں، اور ہم بے چین ہو جاتے تھے کہ ہم نے جا کے بیٹی کی عزت کو بچانا ہے، اور ہم نے کر کے بھی دکھایا. اب اس طرح کے ایک خدا ترس افراد ان اداروں سے پیدا ہوں گے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کون سا وہ نصاب پڑھیں گے تو یہ افراد تیار ہوں گے، کون سا وہ نظام تعلیم ہوگا جس سے یہ افراد تیار ہوں گے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے عافیہ جیسی ایک عظیم بیٹی جو ہے وہ بیچ دی اور پھر اپنی کتابوں میں فخر کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا. اور دنیا میں اس وقت ویسے تو کئی خواتین کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن دو خواتین اس جدید دور میں ایک عظیم مثال ہیں دونوں چیزوں کو سمجھنے کی. ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ ہیں اور ایک وہ برطانیہ کی خاتون صحافی ایوان ریڈلے جن کا مسلمان ہو کے نام مریم لینے پڑا. ایک خاتون دشمن بن کے آتی ہے، یہ خود اس نے اپنی بات، یہ جو بات ہے کتاب میں لکھی ہے کہ کس قدر اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے اور کیا وہ تعصب اور نفرت لے کے آتی ہے، لیکن وہاں آتی ہے، کچھ عرصہ رہتی ہے، قیدی بنتی ہے، واپس جاتی ہے تو مسلمان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیں بتاتی ہے کہ عافیہ صدیقی بیچارے کیا کس حالت میں. اور دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ ہیں جو انہی کے اداروں کی پی ایچ ڈی ہیں اور وہاں سے گولڈ میڈلسٹ بھی، اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے بیچاری کے ساتھ. تو کن لوگوں نے اس کو بیچا اور بیچنے کے بعد پھر فخر کے ساتھ اپنی کتابوں میں بھی لکھا. اب ہم یہ دیکھیں کہ ایسے افراد جو اپنی بیٹیوں کو بیچ دیں وہ کن اداروں سے نکلے، کیا نصاب پڑھ کے نکلے، کس طرح نکلے. اور وہ افراد جو دوسروں کی بیٹی کی بھی عزت کا خیال کرنے والے ہوں، خواہ وہ ماضی میں تھے یا اب ہیں، وہ کن اداروں سے نکلے، کون سا نصاب پڑھ کے نکلے، کون سا نظام لے کر وہ نکلے. اب وہی نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اگر آئے گا تو ایک ایسی قیادت میسر آئے گی جو نہ صرف یہ کہ ملک کو صحیح راہ پہ لا دے گی بلکہ وہ دنیا کے دیگر ملک کے لیے اور باقی آبادی کے لیے بھی وہ باعث سکون اور راحت ہوگی. ورنہ آپ دیکھ لیں، ماضی قریب کی مثال آپ دیکھ لیں یا باقی ساری باتیں چھوڑیں،
कि आजकल के दौर के हवाले से जो एक अहम तरीन मसला मईशत का आता है, हमारा वतन अजीज उस वक्त से लेके अब तक कर्जों की दलदल में मुसलसल जकड़ता चला जा रहा है। तो वो जो कर्जों की दलदल में इसको जकड़ने वाले हैं, खा वो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या वो तस्वीरों में जितना भी मुस्कुराते हैं, उनकी पॉलिसियों का नतीजा आज हमारे सामने है कि आप और मैं अच्छे घराने से ताल्लुक के बावजूद, अच्छी खासी आमदन के बावजूद भी महंगाई के हाथों पिट रहे हैं। मजदूरों की तो आप हालत की बात ही ना करें। आप पाकपतन शरीफ में वहाँ वो बस्ती शरीफ वाला है, जब वो नादरा वाला चौक है, कि कितने मजदूर सुबह को रो रहे होते हैं, कितने घरानों में फाके चल रहे होते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब खवातीन जो है वो अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए बाहर निकल रही हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो अब सवाल ये है कि इतनी आला डिग्रियां, इतनी यूनिवर्सिटियों के उनका प्रोफेसर होना कि जो फलां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, फलां आलमी इदारे में वो काम करते रहे हैं, फलां इस तरह है, उसका फायदा क्या निकला या उसका नतीजा क्या निकला कि मजदूर हो रहा है। अब सोचे इसमें कि वो निसाब तलीम, वो निज़ाम तलीम वो कहाँ से मिलेगा हमें जो मुल्क को कर्जों से निजात दिला दे। मुआशियात के एक तालिब इल्म होने की सी से ये बात मैं बतौर चैलेंज कह सकता हूँ कि ये जो हमारे आजकल के नाम नहाद किस्म के माहिरीन मुआशियात बैठे हैं, कि फलां यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, फलां डिग्री के हामिल है, फलां आला तलीम है, फलां है, ये चैलेंज है कि ये मुल्क को कभी भी कर्जों से निजात नहीं दिला सकते। तो जाहिर बात है जब मुल्क कर्जों से नहीं निकल सकेगा तो बेहतरी कैसे आएगी। इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है और वो निसाब तलीम लाने की ज़रूरत है जो एक ऐसी बाहिम्मत, खौफ खुदा और एक गैरतमंद क़यादत पैदा करे जो मुल्क के लिए रातों को भी जागने वाली हो और बेचैन हो जाने वाली हो। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। जब ये जड़ हम पकड़ लेंगे ना और बुराई की जड़ को काट देंगे और उसकी जगह सही जो है वो पैबंदकारी कर देंगे, तो यकीन जानिए कुछ अरसे के बाद बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। मेरे भाई अदालतों की बात कर रहे थे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बाज़ हाई कोर्ट के जज साहिबान आए, उन्होंने कत्ल के मुकदमात का जब 3 दिन के अंदर फैसला किया तो बार ही उनके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई। वजह क्या थी कि जिस कदर स्पीडी ट्रायल वो कर रहे थे, तो उन्होंने खुद फिर अपने बयान में कहा, एलानिया कहा और अपनी किताब में भी लिखा इस बात को कि अगर जजेस साहिबान तेजी से अदल करें, मुकदमात के फैसले करें, तो आधे जज हमारे वैसे ही फारग हो जाएंगे, इतना बोझ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सारे मसाइल समझते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने फिर लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बनाया होता है कि नहीं अगली तारीख आ गई, फलां आ गई, फलां आ गई, ये हो गया वो। और जब इंसाफ में तखीर होती है तो मसाइल के, माशरा के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। तो इसलिए वो अफराद जो इंसाफ में रुकावट है, अब इस पर गौर करें तो वो किन इदारों से निकले हैं, उन्होंने कौन सा निसाब पढ़ा है कि उनको मजलूम के आंसू नजर ही नहीं आते, उनको सिर्फ अपनी फीसों से पड़ी हुई है और वो जजेस को प्रेशराइज करते रहते हैं कि अगली तारीख दें, अगली तारीख दें, अगली तारीख। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। आप ये कह रहे थे कि तमाम तर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इस निज़ाम को बदलने की जरूरत है। निज़ाम में कौन कौन सी खामियां आप मोस्टली समझते हैं और निज़ाम को कैसे बदला जा सकता है, कौन से इकदाम आप समझते हैं कि फिलफौर उठाने चाहिए? तो फिर भी बड़ा खूबसूरत सवाल किया है आपने और मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफली आंसर करना चाहूँगा। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए। आज का दिन ही 23 मार्च का दिन है और साल है 1940। आप एक तस्वर लाएं ज़रा मिंटो पार्क का, वो कि वहाँ पे लाखों का मजमा है। उस लाखों के मजमे में देखें कौन है वहाँ पे, सारे के सारे मुसलमान खड़े हैं। वहाँ पे उस बड़े शरीर के लोग खड़े हैं। उनको नहीं पता कि मेरे साथ वाला किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको नहीं पता मेरे साथ जो आया है वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, उसको नहीं पता वो किस शहर से ताल्लुक़ रखता है। वो सारे एक मकसद के लिए इकट्ठे हो गए कि हमने हसूल पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करनी है। जब वो अपनी ज़ात को, अपने मुफाद को, अपनी बरादरी को, अपने हर उस अमल को जो रुकावट था उनके इत्तेहाद और इत्तेफाक की, उसको भुलाकर एक नज़रिए पर आ गए। वहाँ से जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ और 7 साल के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से जो है वो हासिल कर लिया। अब इसी बात को मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है हमारे मसाइल क्या। करप्शन सबसे बड़ा मसला है जो रुकावट है हमारे मुल्क की तरक्की में। उसके बाद हमारे ज़ाती मुफाद, किसी को गली पक्की करवानी है, किसी को ट्रांसफार्मर लगवाना है, किसी को जनाब अपने गांव की तरफ रास्ता खुलवाना है। ये वो छोटे छोटे पर्सनल और ज़ाती मुफादात हैं जिसकी बिना पर हम इज्तिमाई मुफाद को भुला देते हैं। फिर
हिर्स है, फिर छोटे हवस छोटे है। भी तो एक इलाके के वासियों के इज्तिमाई मुफाद ही बनते हैं ना। अगर आपकी गली का मसला है तो वो आपके पूरे इलाके का मसला है, अकेले आपका नहीं है। तो कीर भाई एक गली मसला ये है, असल में इस बात को समझने की जरूरत है। मैं इस निज़ाम वाली बात को समझाऊं, जो बेसिकली हमारे जो एमपीएज एमएनएज हैं, इनका काम ही नहीं है कि गलियों को रिपेयर करवाना या सड़कों को बनवाना। ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारी जो टीएम में है, हमारे जो दीगर अदारे हैं, ये उनका काम है। एमपीए एमएनए का काम है लेजिस्लेशन करना, उनका काम है असेंबली में बैठकर कानून साजी करना। अब हमारा निज़ाम यहीं पे तो डिस्टर्ब होता है कि हम लोगों ने वहां पे एमपीए एमएनए को वहां पे उस बंदे को भिजवाना है जो कानून को समझता हो, जो कानून के मुताबिक नए जो कानून साजी है उसमें शिरकत कर सके। अब आप देखें कि वहां पे आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, एमपीएज एमएनएज हमारे, वो उनसे पूछ रहे थे कि ये बताएं कि ये जो 18वीं तरमीम आई है इसमें क्या नया आया है। उनको पता ही नहीं था कि 18वीं तरमीम होती क्या है। क्या कि हमने उनको एमपीए एमएनए बना के असेंबली में भिजवाया इसलिए कि वो मेरी गांव की जो है वो सड़क पक्की करवा देंगे या मेरे ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर वो रखवा देंगे। तो कीर भाई ये इज्तिमाई मुफाद नहीं है। इज्तिमाई मुफाद ये है कि इस मुल्क में निज़ाम तालीम कौन बेहतर करेगा। इज्तिमाई मुफाद ये है कि इस मुल्क का निज़ाम अदल कौन बेहतर करेगा। इज्तिमाई मुफाद ये है कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा कौन करेगा। ये वो इज्तिमाई मुफादात हैं जिस पर हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हमें तजिया करना चाहिए, हमें अपनी जाती लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर आना चाहिए। मेरे बाप दादा की किसके साथ लाइकिंग थी, मेरे फैमिली की किसके साथ लाइकिंग थी, उस चीज को छोड़कर हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा फर्द है, कौन सा ऐसा लीडर है जो अपनी फैमिली से हटकर, अपने अहलो अयाल से हटकर, अपने जाती किचन कैबिनेट से हटकर जो मुल्क पाकिस्तान का सोचेगा, जो आम पाकिस्तानी का सोचेगा, जो हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम में बेहतरी लाएगा, निज़ाम अदल में बेहतरी लाएगा, निज़ाम सेहत में बेहतरी लाएगा। ये तो कीर भाई वो इज्तिमाई मुफादात है। जब हर बंदा तालीम याफ्ता हो जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है कि पढ़ा लिखा तबका हो और वो 10 लोग 20 लोग 50 लोग मिलकर, आप बरतानिया का निज़ाम तो देखें जिसको हम यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। वहां पे क्या है, यूनियन काउंसिल सिस्टम है। आपके हर मसले का हल आपकी यूनियन काउंसिल में मिलता है। आप इस्लामाबाद जाए ना, वहां पे F1 F2 G1 G2 G8 बने हुए हैं। वहां का निजाम देखिए क्या है। वहां पे किसी को भी किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहां पे मिलेगा। आपका अगर कोई पानी का निकासी का मसला है वहीं हल होगा। आपको हर चीज वहां पे मिल जाएगी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो प्यारे भाई आपको अगर आपकी डिग्री वेरीफाई करनी हो तो आप देखें डेरा गाजी खान से बंदा चलेगा और जाएगा जाके लाहौर। सारे दिन वो हाई कोर्ट में जाना हो तो देखें क्या किन किन चीजों का मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो अपनी दिहाड़ी अपनी नौकरी खत्म करके जाता है और आगे जाता है तो पता चलता है तारीख पड़ गई है, फिर वो वापिस आता है, किराया भी लगाता है, सारा कुछ करता है और हासिल कुछ नहीं होता। जब यानी आप समझते हैं अभी हमारे मोस्टली मसाइल का हल क़यादत का फुकदान है। हमें साल से जो हमारी खानदानी जो है खानदान से चलने वाले अफराद को बदल के लिए उस शख्स को आगे लाना चाहिए जो इन जिम्मेदारियों का अहल है। दो चीजें हैं तो कीर भाई, एक चीज एग्जैक्टली यही है जिसको आप बयान कर रहे हैं, क़यादत का फुकदान है। दूसरी जो चीज है वो हमारी सोच का फुकदान है। हमें इज्तिमाई सोच लानी होगी, इस चीज का एक फुकदान है। हमें ये नहीं सोचना कि ये किस पार्टी से है, हमें ये नहीं सोचना कि किस बरादरी से है, हमें ये नहीं सोचना कि किस इलाके से है। हमें ये सोचना है कि ये जो आने वाला बंदा है ये हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी ला सकता है। बस ये जब इज्तिमाई सोच हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जिसका ख्वाब 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में लाखों मुसलमानों ने देखा था, उस ख्वाब को हम शर्मिंदा ताबीर ना कर सके। ठीक है डॉक्टर अहमद अली शाद साहब, अकील शहबाज साहब भी आपकी तरह यही समझते हैं कि बेशतर मसाइल का हल क़यादत का फुकदान है। इस फुकदान को कैसे दूर किया जा सकता है? जो नौजवान नस्ल है उनकी सियासी तरबियत कैसे की जा सकती है? कौन से इकदाम आप समझते हैं जो फिलफौर उठाने चाहिए? जी तौकीर साहब, बात यह है कि हमारे बहुत से मसाइल हैं लेकिन हम उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचते बल्कि उनको फुरुआत में खो जाते हैं। इस तरीके से वो मसाइल हल नहीं होते। हम कोई भी मैदान ले लें, अगर तालीमी मैदान ही है तो सिस्टम पढ़ाया कुछ और जा रहा है, सिलेबस कुछ और है, हकायक ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, सिलेबस कुछ और है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जुबानें और ये एक
वो चरबा सा बन जाता है जिससे हम कोई अच्छी कौम और अच्छी नस्ल तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह जब ग्राउंड रियलिटीज और ज़मीनी हकायक और बाकी चीजें जब मैच नहीं करेंगी तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे, वो मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि वो सारी चीजें अगर उनमें हम आहंगी हो और एक तरतीब हो, एक करीना हो, तो फिर उसके बाद उसके नताइज यकीनन वो हमें मस्बत मिल सकते हैं। और हमें कौम को आगे ले जाने के लिए, जिस तरह शहबाज साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें इनफरादियत से ऊपर जाकर इज्तमाइयत की बात करनी चाहिए। और बड़ा आदमी वो है, बड़ा लीडर वो है जिसकी सोच बड़ी हो, जो सिर्फ अपने घर तक न सोचे, इससे आगे चले, जो सिर्फ अपनी गली तक न सोचे, बल्कि अपने मोहल्ले की बात ना करे, बल्कि अपने मुल्क की बात करे, बल्कि मुल्क से हट के अगर वो पूरी दुनिया पे नजर रखता है, गौर खोज करता है, सोचता है, तो वो उसकी नजर में होंगे सारे मुमालिक और जो मसाइल चल रहे हैं, तो फिर एक बड़ी सोच एक अजीम इंसान पैदा करती है। और हमें इस चीज की जरूरत है कि हम इल्म के जरिए शऊर पैदा करें और अपनी सोच को बड़ा करें। जी, तो जो आप समझते हैं नौजवान क़यादत को आगे लाना चाहिए, तो उनकी सियासी तरबियत की भी मैं समझता हूँ अशद जरूरत है। जिस तरह हकीम सईद साहब मरहूम अपने इलाके में महाना तौर पर बच्चों की नौनिहाल असेंबली मुनक्कद करते थे, जिसमें उनको सेनेट में जाकर अपना जो मेन नजरिया है वो पेश करने की तरबियत दी जाती थी, दीगर असेंबलियों में जाकर वहां पर अपने मसाइल रखने की तरबियत दी जाती थी। मैं समझता हूँ इन चीजों की भी अशद जरूरत है, ताकि अभी इसके सिरे से जब बच्चों की तरबियत की जाए कि उन्हें असेंबलियों में जाकर अपना नजरिया कैसे पेश करना है। जी, ये देखिए ना, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने हमें एक नजरिया दिया कि हम एक कौम है, मुसलमान एक कौम है। अब उसमें इसको महदूद पैमाने पे हम नहीं सोच सकते कि जो पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ वो एक कौम है, या जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक कौम है, जो इस्लामी मुमालिक में रहते हैं नहीं। बल्कि उन्होंने कह दिया कि जहां पे भी मुसलमान बसते हैं, रहते हैं, वो एक कौम है। बुतान रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। तो जब हम इन हदूदों कयूद से बढ़ के एक बड़ी सोच लेंगे, तो फिर उसके बाद हम एक कौम बनेंगे और मजबूत कौम बनेंगे। लेकिन हमारी तो सोचें ही महदूद हैं, हमें तो अपनी जात से आगे कोई चीज नजर ही नहीं आती। हमें अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी बात का लब्बे लुबाब ये था कि हमारे तालीमी निज़ाम को, हमारे तालीमी इदारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के सरबराह हैं। तो क्या तब्दीलियां आपने उस इदारे में की हैं और क्या तब्दीलियां आप चाहते हैं कि दीगर इदारों में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो सके? बस मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटीज है। जी जी प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, जी आप करें बात प्लीज। नहीं रहमत भाई, आप करें बात। उन्होंने आपसे पूछा था, मैं माजरत खां हूं। मैंने आपसे पूछा था मसूद साहब। जी मसूद साहब आपसे पूछ रहे हैं, आप बात करें प्लीज। जी देखें, जहाँ तक सरबराह इदारा होने की हैसियत है, तो वो निसाब के हवाले से या निज़ाम के हवाले से जितने इख्तियारात है, आप बेहतर जानते हैं कि क्या होता है सिलसिला। लेकिन मैंने एक ही बात की है और अपने असाज़ा से वाज़ेह तौर पर की है, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ रहे हैं, कि भी इन बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि जैसे ये आपके बेटे हैं, जैसे ये टीचर के बेटे हैं या आपके अपने बेटे हैं। इसी तरह जब आप दीगर तलबा को पढ़ाएंगे तो फिर इनकी जाके अच्छी तरबियत होगी। इसके अलावा तरबियत का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। अपने बच्चे को या दूसरे को फ़र्क रखना, ये एक दोहरा मेयार ये तरबियत में नहीं चलता। बाकी निसाब तलीम और निज़ाम तलीम के हवाले से एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जिसकी वजह से नौजवानों की तरबियत होती है, हमारा निसाब तलीम और ख़ास तौर पर इसमें जो ज़रूरत है कि हम अपने जो एक बड़े हीरो से, हमारे जो मशाहिर हैं मुसलमानों के, उनके किरदार से लाजमन मुतारफ करवाएं। जब बच्चे अजीम शख्सियात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके मुतल्लिक गुफ्तगू होती है, तब जाके तलवा में एक बड़ा बनने का ज़ौक़ पैदा होता है और बाकिरदार बनने का ज़ौक़ पैदा होता है। तो असल बात जो होती है वो बड़ा बनना नहीं होता, ये नाम कमाने नहीं थे, बल्कि किरदार होता है। जब नौजवानों के अंदर एक किरदार की अजमत आ जाएगी, यकीन जाने वो फिर सारे काम करवा लेती है। वो पैसा भी बना लेती है, मईशत भी ठीक हो जाती है, सियासत भी ठीक हो जाती है, मुआशरत भी ठीक हो जाती है, जब किरदार की अजमत आ जाती है। अगर एक आदमी पैसे लगा के या खुफिया ताकतों से मिल के वो इलेक्शन में आगे आ जाता है, तो ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमारी जो BA पास असेंबली थी, जिसमें सारे ही लोग जो है वो ग्रेजुएट थे,
और निस्बतन नौजवान भी थे। मुल्की तारीख की सबसे महंगी तरीन असम्बली थी कि उसका 1 सेकंड जो उसके अखराजात का हिसाब लगाया गया, तो उन 5 सालों का जो 1 सेकंड था वो कौम को 55,000 रुपए में पड़ा था। आप अंदाजा लगा लें। वजह क्या थी कि बज़ाहिर सारी चीजें थी, लेकिन वो किरदार की अजमत नहीं थी, जिसकी वजह से वो मसाइल ना सिर्फ जूं के तू रहे बल्कि मजीद संगीन तर होते गए। तो बतौर टीचर हमें अपने तलबा की जो किरदार की अजमत है, तश्कील किरदार है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो इससे बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं, उनके लिए किसी अलग जिद्दोजहद की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर तश्कील किरदार ना हो सकी तो मईशत जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, जो मर्जी कर लें, तनख्वाहें बहुत बड़ी दे दें, तब भी जाकर ना इंसाफ होगा। मेरे भाई वकालत करते हैं, देख लें कि आला अदलिया के जजों की मुराद कितनी ज्यादा है कि हमारे आम आदमी की वो सोच से भी ज्यादा है, लेकिन क्या वहां पर इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम खूब जानते हैं। इसके अलावा जो कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल है, 80 साल से जो मसला एक हमने जानबूझ कर लटकाया हुआ है, उसको हल नहीं करते। वहां पर जो कुछ हो रहा है आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किन लोगों ने इसका सौदा किया, कैसे किया, और कौन लोग जो है वो कश्मीरी बेटियों की इज्जत पे रोटी खा रहे हैं और अपना धन चला रहे हैं। तो वजह क्या है? वो किरदार की अजमत नहीं है, जिसकी वजह से अपनी बेटियां भी जलील हो रही हैं, गैरों की बेटियों को हम क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो निसाब तलीम वो होता है जो तश्कील किरदार करे और अजमत किरदार पैदा करे, बाकी सब फजूल ही होता है। ठीक है डॉक्टर अहमद अली शाह साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, हम कौम से हटकर अब एक हजूम में बदल चुके हैं। अब एक हजूम से कौम बनने का सफर हमें कैसे तय करना चाहिए, और पाकिस्तानी कौम जिनको अब मुत्हिद और मुनज़्ज़म होने की सबसे ज्यादा अशद जरूरत है, वक्त की अशद जरूरत है, पाकिस्तानी कौम को कैसे मुत्हिद होना चाहिए और हमें कैसे इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, और ताकि जब पाकिस्तानी कौम मुत्हिद होगी तो इनके बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर अहमद अली शाह साहब सुन सकते हैं आप? जी, अब आवाज आई है, आवाज कट गई थी। जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। प्लीज जी कंटिन्यू प्लीज सर। पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम क्या कौम सवाल से एक हजूम में बदल चुके हैं और हम दिन ब दिन एक जी हजूम की शक्ल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। हमें एक हजूम से कौम तक बनने का सफर कैसे तय करना होगा, पाकिस्तानी कौम को कैसे मुत्हिद करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, उनको मुनज़्ज़म करना होगा, ताकि हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं जब वो इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करेंगे तो उनका हल भी जल्दी निकल सकता है। जी तौकीर साहब, मैं समझता हूं कि हर शख्स को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये देखे बगैर कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ताकत इतनी नहीं है, मेरी हैसियत इतनी नहीं है। वो पंजाबी का एक शेर याद आ रहा है कि जी सर। कदी ते भारी हो जावांगा इस हनेरे उत्ते, कदी ते भारी हो जावांगा इस हनेरे उत्ते, दीवा बाल के रख देना वा रोज बनेरे उत्ते। वाह। अगर हम देखें तो एक दिया जो है वो बरकी कुमकुमे हैं, इतने बड़े बड़े एनर्जी सेवर हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, और मेरी जो रोशनी है उसकी वक़्त ही नहीं है। या जुगनू है, जुगनू ये कह के चमकना छोड़ दे कि मेरी रोशनी की अहमियत नहीं है, तो ये सही नहीं है। मैं समझता हूं कि हर शख्स को जितना उसके अख्तियार में है कोशिश करते रहना चाहिए, और जब ये तमाम लोग अपने अपने तौर पर कोशिश करेंगे तो फिर ये हम बहसीयत कौम आगे निकलेंगे। तो इसमें हमें अपने अपने तौर पे हिस्सा डालने की जरूरत है, बगैर हिस्सा सोचे डालने की समझे जरूरत के। है, लेकिन लोगों को आगाही कैसे दी जा सकती है इस मुतल्लिक कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, अपना अपना हिस्सा डालना होगा, हर शख्स को अपने हिस्से की शम्मा जलानी होगी। सबसे पहले तो उन्हें गाइड करना चाहिए ना कि आपके बहुत सारे जो मुल्क के मसाइल है वो इज्तिमाइयत की शक्ल में हल हो सकते हैं। कैसे उनको आगाह किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाना चाहिए? तो डॉक्टर मसरूर कम्युनिकेशन शरीफ साहब,
जिस तरह डॉक्टर मसूद शरीफ साहब कह रहे थे कि अगर हम बच्चों को अपने बेटों की तरह पढ़ाएंगे तो फिर और सूरत होगी, अगर वैसे फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो फिर और सूरत होगी। अगर उनकी अच्छी तरबियत करनी है, जब तक उनकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उनके अंदर शऊर पैदा नहीं होगा, उनको सही बुनियादी चीजों के बारे में बताया नहीं जाएगा, तो फिर हम बहसीयत कौम आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकेंगे। ठीक ठीक है कि शहबाज साहब, आपकी जानब आऊंगा। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में लाने के लिए बतौर एक शहरी हर फर्द का इनफरादी हिस्सा काम क्या होना चाहिए? क्या उसको अपना हिस्सा डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए जो मौजूदा सूरत हाल है आप उसको देखें, उसका मुआवजा करें? तो क्या समझते हैं आप कि हर शहरी को अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए? हर फर्द का इनफरादी एक काम बनता है कि वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करे। किन इकदाम की जरूरत समझते हैं फिलफौर? तो कीर भाई, जो इनफरादी तौर पे आपने सवाल किया कि हर बंदा अपना अपना हिस्सा इसमें कैसे डाल सकता है, उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया से आपका लिंक है, बाकी दोनों दोस्त बैठे हैं, ये सीनियर तरीन हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, मेरा प्रोफेशन लॉ है, उसके अलावा एजुकेशन से भी मेरा ताल्लुक़ है, डिपार्टमेंट से। तो हम चार अब बैठे हैं, हम चार क्या करें, हम अपने अपने प्रोफेशन के साथ सिंसेयर हो जाए, हम मुखलिस हो जाए, हम अपने प्रोफेशन को बतौर इबादत लें। जब हमारे अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि मैंने अपने प्रोफेशन के ज़रिए अब ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कैसे करनी है, सिर्फ अपना नहीं सोचना, दूसरे लोगों का भी सोचना। जैसे आपका माशाल्लाह ये प्रोग्राम है, अब मैं तो ये दावा कर सकता हूँ कि हम 3 दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, हमने आपको जो है वो किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं की है, और मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए लेके बैठे हैं कि मसाइल को, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए कोई ना कोई राय आ जाए, दोस्तों के साथ शेयर हो जाए, कोई एक शख्स भी हमारी आवाज़ को समझ ले, हमारी बात को समझ ले, तो वो इस साइड पे मुल्क की तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। तो इसी तरह हम जो बैठे हैं, हमें भी ये चाहिए कि हम अपना हक इसी तरह से अदा करें कि अगर मैं किसी चेयर पे बैठा हूं तो मैं इस इखलास और मुखलिसी के साथ बैठा हूं कि आज अगर मैं आया हूं तो कम से कम कोई एक अच्छा काम तो मैं ऐसा करके जाऊंगा अपनी जगह पे कि जिससे किसी ना किसी का फायदा हो जाए, जिससे किसी ना किसी को मुफाद उसका जो वाबस्ता है वो काम उसका हो जाए। मुफाद क्या हो, लीगल हो, इलीगल ना हो। सबसे पहली बात ये है, हम जो भी स्टेप उठाएं उसको मद्देनजर रखें कि ये जो मैं काम, अगर मैंने किसी चीज पे साइन भी करने हैं, किसी पेपर पे दस्तखत करने हैं, मेरा काम इतना ही है तो करने को तो सिर्फ एक साइन है, लेकिन उस साइन के पीछे बैकग्राउंड क्या है मुझे उसको समझने की जरूरत है। जब हम सब लोग अपनी इनफरादी जिम्मेदारी इस तरह अदा करेंगे कि अपने अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएंगे और हमारे इखलास में इज्तिमाइयत का जो तासुर है वो शामिल हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि ये मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी कौम भी तलीम याफ्ता हो जाएगी और अनकरीब इंशाअल्लाह अजीज हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होंगे। और उसके लिए हमें फॉलो करना चाहिए। मलेशिया की मिसाल बड़ी बेहतरीन मिसाल है। हमारे मुल्क की आज़ादी के 6-7 साल बाद वो मुल्क आज़ाद हुआ है और आज मलेशिया देखें कहाँ चला गया, उसके चारों साइड पे समंदर है, सबको पता है। टर्की की मिसाल हमारे सामने है। हमें बजाय इसके कि हम यूरोप को फॉलो करें, हम उन इस्लामिक ममालिक को फॉलो करें कि जिन्होंने किन खतूत पर स्ट्रगल की और उसके बाद तरक्की के इस लेवल पे पहुंचे कि आज वो इंटरनेशनल ताकतों को, बड़ी ताकतों का भी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में वो नुमायां तौर पर खड़े दिखाई देते हैं। तो हमें उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए। उन्होंने अपना निज़ाम तालीम कैसे बेहतर किया, उन्होंने अपना निज़ाम अदलिया कैसे बेहतर किया, उन्होंने अपने सेहत की किस तरह लोगों को सहूलियात मुहैया की, तो उनके साथ हमें मिल बैठना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए और उन्हीं खतूत पर हमें अपने मुल्क को तरक्की की मंजिलों को तय करने के सफर का आगाज करना चाहिए। हर शख्स को इंफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर मसूद साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, 23 मार्च 1940 को हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जिस जद्दोजहद का आगाज किया उसके नतायज 7 साल 4 माह के बाद निकल आए। क्या पाकिस्तान को संवारने के लिए हम पर यह फर्ज नहीं कि हम उसी जद्दोजहद का दोबारा से आगाज करें? जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी का, हर शहरी की अनफरादी तौर पे भी जिम्मेदारी है और इज्तिमाई तौर पे भी जिम्मेदारी है, एक जज्बे के तहत, एक सोच के तहत जो मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे। ये जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मेरे दूसरे भाई ने भी फरमाया है,
جب ہماری ایک سوچ ہی فرق ہوگی اور ایک طبقاتی نظام یا ان کے جو مابعد طبیعت ہے اس کی وجہ سے ہمیں مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک طبقہ جو ہے اس نے کلرکی لگنا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جس میں گورنری لگنا ہے. تو پھر مسائل تو بڑھنے تھے، لیکن بہرحال اب بھی ہم اگر یہ عمومی طور پہ جو ہمارا چھوٹا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو محکوم سمجھتا ہے وہی یہ ذمہ داری لے لے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کر کہ یہ میرا ملک ہے اور میں نے اس کو بہتر کرنا ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا میں ایک قیادت کے منصب پہ فائز ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد علی شاد صاحب، 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے پروگرام کے لاسٹ پر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی دوبارہ سوال کیجیے، آواز. سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے پروگرام کے لاسٹ پر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں توقیر صاحب یہی کہوں گا کہ جس طرح 23 مارچ کو وہاں پہ ہمارے اکابر مشاہیر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 7 سال کچھ ماہ بعد ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر وہی جذبہ وہی اخلاص لے کے ہم آگے نکلیں جو ان کے ہاں تھا، ان کا تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آؤ پیدل ہی نکل پڑتے ہیں، آؤ پیدل ہی نکل پڑتے ہیں، بس چاند تک ہی تو جانا ہے. اگر یہ جذبہ ہوگا ہمارا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر کوئی بھی ہمیں یہ روک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مسعود شریف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر احمد علی شاد صاحب اور عقیل شہباز ایڈوکیٹ صاحب. یوم پاکستان کی مناسبت سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرے، اور جب سب مل کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کریں گے تو پاکستان کے مسائل کو اجتماعی طور پر دیکھیں گے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. ہمیں ہر شخص کو اپنے حصے کا شمع جلانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان تیزی سے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں آ سکے. پی کے نیوز کی یوم پاکستان ٹرانسمیشن میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. مشکل کب رہتی ہے، ایک ہے کام